So we were discussing the first order system with unit step response. तो उसके बाद our standard signal is our ramp response. So ramp response again we are taking a first order system k upon ts plus 1. This is the first order system. Then a ramp signal. What is a ramp signal? A ramp signal is basically like this: is rt equals to t is a ramp signal. ठीक है, it is drawn like this. If this is t, this is your signal, then the rt will be like this, which is directly proportional to the time. So the Laplace transformation of this is, the Laplace transformation of the signal will be 1 upon s square. So in Laplace domain the input is rs equals to 1 by s square. So the output will be cs will be this gain, your gain, this gain, let's say it gs into rs. इस पूरे गेन को, इस पूरे सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन को मैंने gs कर दिया इंटू rs की वैल्यू है मेरे पास 1 बाय एस स्क्वायर. देन gs की वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है. सो आई कैन कैलकुलेट, just hold on, just a second. Yeah, so this will be your output cs rs into gs. ठीक है, then we have to do the partial fraction to find the value of ct. ठीक, so ct के इसको partial fraction करके we will convert it. मैंने यहाँ convert किया नहीं है. we will convert this cs in the form of your a upon s square, your plus b upon s plus c upon ts plus 1. So by using the partial fraction method, we have to find the value of a, b and c. तो जब ये आप निकाल लोगे, we will find our ct, which will be your inverse Laplace of cs, like this. This will be your ct. So this is the equation for ramp input with first order system. अगर रैम्प इनपुट है और फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है तो आउटपुट विल बी गिवन बाय ct इक्वल्स टू kt t माइनस टाइम कांस्टेंट प्लस कैपिटल T e टू द पावर माइनस t बाय t. जैसे हमने स्टेप सिग्नल के लिए निकाला था, स्टेप सिग्नल के लिए आपको याद हो तो ct जो कल हमने किया था, ct विल बी योर k k 1 minus e to the power minus t by t for step signal, or your ramp for ramp signal, your ct will be this. और impulse signal के लिए जो हमारे ct की वैल्यू थी, that was k upon t e to the power minus t by t. This is your for impulse signal. So again वही चीज है, the derivation of ramp signal give you step signal, the derivation of step signal give you impulse signal, and integration of impulse signal give you step signal, and integration of step signal give you ramp signal. ठीक है, this is your response. आइडियल रिस्पॉन्स जो है वो ये ब्लू वाला होना चाहिए, लाइक दिस. और जो आपका रिस्पॉन्स आता है वो थोड़ा सा इसके पैरेलल आता है. इट इज हैविंग ए स्टैंडर्ड एरर ऑफ दिस. If I draw like this, this is your standard error, which cannot be reduced. It is a fixed error. ठीक है, this is your error. This is your error at different time constant and different value of k. As the time constant increase, the error will increase. ठीक है, then again your output for the parabolic response, the output for the parabolic response, for the parabolic response again rt will be t square by t
So RS will be the Laplace of RT, it will be your 1 by S cube. Again output जो CS होगा, that CS will be RS into this gain, this RS into this gain. Then you have to find the value of CT here. You have to find the value of CT here. So this is I am leaving to you. आपको अगेन क्या करना है, इस CS के पार्शियल फ्रैक्शन करने हैं, इस CS के पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद CT की वैल्यू निकालनी है. तो दिस इज आई एम लीविंग अप टू यू. ठीक है, इस CT की वैल्यू निकाल के आपको मुझे बतानी है कि ये CT की वैल्यू क्या है. कुछ भी नहीं करना है इसमें, इस CS का लाप्लास लेना है. यू हैव टू फाइंड द इनवर्स लाप्लास ऑफ दिस CS. Your CT will be not like this. CT will be inverse Laplace of your CS. CS का इनवर्स लाप्लास लेना है. CS की वैल्यू ये है यहाँ पे आपकी. ठीक है, तो यू हैव टू फाइंड द CT. तो ये चार तरीके के हमने अलग अलग आउटपुट देखे फॉर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम. अगर इम्पल्स इनपुट है, लेट मी शो यू, अगर इम्पल्स इनपुट है तो आपका ये है आउटपुट. अगर आपका यूनिट स्टेप इनपुट है तो आपका आउटपुट ये है. आपका आउटपुट ये है फॉर स्टेप इनपुट. और अगर आपका रैंप रिस्पॉन्स है, देन योर आउटपुट विल बी दिस इज योर रैंप आउटपुट. इसी तरह से पैराबोलिक आउटपुट निकलेगा आपका CT. आपको पैराबोलिक आउटपुट निकालना है. ये यहाँ पे ये CT की वैल्यू आएगी. तो ये पैराबोलिक सिग्नल्स के लिए for 4 different type of signals we find the output of first order system. ठीक है. So some practical determination of transfer function of first order system क्या है. It is not possible or practically to obtain a system transfer function analytically. Perhaps the system is closed and the component parts are not easily identifiable. The system step response can lead to a representation even through the inner construction is not known. इन सब का मतलब क्या है कि दैट मीन्स योर, अगर आपको उसकी कंस्ट्रक्शन नोन नहीं है, आपको ट्रांसफर फंक्शन दिया है कोई इस फॉर्म में CS इक्वल्स टू लाइक 10 अपॉन K की वैल्यू हमने यहाँ 10 ले ली, 10 अपॉन लेट्स से S स्क्वायर प्लस S प्लस 1. यू डू नॉट नो कि यहाँ पे क्या लगा है एक्चुअल में, किससे निकल के आया होगा. ये कुछ इससे निकल के आया होगा कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, देन एक कैपेसिटेंस है. ठीक है, यहाँ पे आपकी VI है, इनपुट वोल्टेज है. यहाँ पे आपका एक इंडक्टर लगा हुआ है. ठीक है, इसके इंडक्टर के अक्रॉस आप वोल्टेज ले रहे हो V0 विच इज आउटपुट वोल्टेज. तो ये C है, ये R है, दिस इज L. और भी कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है. C यहाँ हो सकता है, 2 C हो सकते हैं, पैरेलल में हो सकता है. तो इस ये कंस्ट्रक्शन आपको नोन नहीं है. आप इसको इस CS को देख के ये नहीं बता सकते हो कि इसमें क्या लगा हुआ है. व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस सर्किट. ठीक है, अब ये CS को 1 बाय S लिखते हैं लाप्लास डोमेन. LS को हम L को LS लिखते हैं, R को RE लिखते हैं. तो इट विल बी योर C बाय S, LS और R. बट आपको इस CS को देख के आप ये नहीं बता सकते हो कि ये इसकी इनर कंस्ट्रक्शन क्या है. लेकिन तब भी इवन देन यू कैन फाइंड द रिस्पॉन्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम. ठीक है, आप उसका रिस्पॉन्स निकाल सकते हो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का इफ इनपुट इज नोन. इनपुट आपको बताया हुआ है कि रैंप है, पैराबोलिक है, और आपको उसका ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है. देन यू कैन फाइंड द रिस्पॉन्स ऑफ दैट फर्स्ट ऑर्डर ऑफ दिस फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम. ठीक है, even you don't know the inner construction or the circuitry of the system. So again the practical determination, if we can identify T and K from the laboratory testing, we can obtain the transfer function of the system. तो अगर मैं T और K निकाल सकता हूँ जो हम प्रैक्टिकल में देखेंगे. अब नेक्स्ट वीक योर आफ्टर योर सेशनल आई विल स्टार्ट योर प्रैक्टिकल्स, योर लैब्स. मैंने इसी वजह से अभी स्टार्ट नहीं करी बिकॉज आप इस ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर सिस्टम की रिस्पांस को एक बार समझ लें. आफ्टर दैट आपकी प्रैक्टिकल लैब के प्रैक्टिकल स्टार्ट हो सकते हैं. सो व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस कि अब ये क्या है, तो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ K एंड T फॉर डिफरेंट इनपुट्स एंड देन वी कैन डिफाइन द ट्रांसफर फंक्शन कि ट्रांसफर फंक्शन क्या है. ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल लेट अस अज्यूम ए यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स. यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स जो होता है, ये मैंने यहाँ पे बताया है, दिस इज योर यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स. यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स मतलब योर वैल्यू इज फिक्स्ड थ्रू आउट द टाइम. स्टेप रिस्पॉन्स मीन्स योर वैल्यू इज फिक्स्ड थ्रू आउट दिस टाइम. यूनिट है दैट मीन्स उसकी वैल्यू 1 है. ठीक. Now from the response we can measure the time constant and the time constant of the amplitude to reach 63% of its final value. आपको याद हो जो हमने स्टेप रिस्पॉन्स के लिए निकाला था, तो at t equals to कैपिटल T पे 63% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू अचीव करता है. मैंने आपको वहाँ पे एक बार जगह बताया था. लेट मी शो यू. हम बैक करके देखते हैं. Let me get that slide. This one. तो हमने यहाँ पे निकाला था if t equals to कैपिटल T. अगर मैं t equals to कैपिटल T रखता हूँ यहाँ पे, this one, then I'll find the output will be 0.632k, which is the 63% of its final value. तो t equals to कैपिटल T पे मेरा आउटपुट जो है वो 63% अपनी फाइनल वैल्यू को अचीव कर लेगा. So the same thing I am stating here in this that at 63%, let 63% is for the it is a unit step input, so the output will be 1, so the 63% is 0.63 like this. So this is the time which is equal to the this is the value which is equal to the time constant. Let's say it is 0.35 second. 0.35 second is the time constant for this particular question. So if you know the graph of the particular transfer function, then we can find the time value of t for that particular transfer function for that particular graph. कैसे निकालोगे कि 63% पे हम देखेंगे आउटपुट जो है एम्पलीट्यूड जो 63% होना चाहिए. 63% पे ग्राफ का टाइम क्या है, किस टाइम पे पहुंच रहा है, विच इज योर टाइम कांस्टेंट. ठीक है. टाइम कांस्टेंट निकल गया है. देन फॉर द फाइनल वैल्यू विल फाइंड द टाइम कांस्टेंट. ओके. फॉर दिस केस द फाइनल वैल्यू जो है वो 0.72 है. 0.72 है. तो 0.72, the 63% of 0.72 will be 63 divided by 100. So it will come 0.45. 0.45. So at 0.45 जो है वो फाइनल वैल्यू की 63% है. इस पे जो वैल्यू होगी t की which comes around 0.13 second, that will be your just let me erase others thing. That will be your time constant t, capital T. So this will be your time constant capital T. तो ये कैसे निकाला हमने. यहाँ पे जो इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए जो आपकी फाइनल वैल्यू थी वो 0.72 थी. दिस थी नॉट 1. ठीक है. तो 0.72 का 63% वो आया आपका 0.45. तो 0.45 पे आपका टाइम क्या है, ग्राफ कब पहुंच रहा है इस टाइम पे, दैट विल बी योर टाइम कांस्टेंट कैपिटल T. ठीक है. सो k इज सिंपली ए स्टडी स्टेट वैल्यू. k जो है जो जब आपका स्टडी स्टेट अचीव कर लेता है वो 0.72 है, तो वो 0.72 रख देंगे हम. दस द ट्रांसफर फंक्शन जो आपका होगा, ट्रांसफर फंक्शन विल बी कहाँ से निकलेगा वो, दैट विल बी कैलकुलेटेड. लेट मी क्लियर ऑल दिस. दैट विल बी कैलकुलेटेड योर k अपॉन ts प्लस 1. k अपॉन ts प्लस 1. तो k और t की वैल्यू रख दोगे आप. तो इस पर्टिकुलर ग्राफ से आपको आप ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हो उस सिस्टम का विदाउट नोइंग कि उसमें आरएलसी सर्किट है, आरसी सर्किट है, या उसकी इनर कंस्ट्रक्शन क्या है. ठीक है. तो प्रैक्टिकल विल बी बेस्ड ऑन दिस कि आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है. देन ग्राफ ड्रॉ बाय ड्रॉइंग द ग्राफ यू कैन फाइंड द k and t ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम. ठीक है. So some examples are there. A thermometer requires 1 minute to indicate the
98% of the response of a unit step input. Assuming that thermometer is a first order system, then find the time constant. ठीक है, 90% of its response to a unit step input. 1 मिनट लेता है 98% पहुंचने के लिए. तो 98% जो पहुंचने के लिए आपका 1 मिनट लेता है. 98% वैल्यू पे कोई भी सिस्टम तब पहुंचता है जब उसके टाइम कांस्टेंट की वैल्यू विल बी इक्वल टू 3t. ठीक है, 1t is equals to 63%, 2t equals to your just a minute. No. Yes, sorry, it's got disconnected. So 90, I it is deleted. At t, the final value will be 63%. At 2t, the final value will be your 83% around, and at 3t, your final value will be 98% of its final value. तो आप इससे ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. 1 मिनट इज फॉर 98, सो 3t इक्वल्स टू 1 मिनट. वहां से आप t की वैल्यू निकाल सकते हो. अगेन ये क्वेश्चन भी इसी तरीके से सॉल्व होगा. यू विल ट्राई इट कि ये कैसे सॉल्व होगा. This comparison is not required. Okay, that's fine. So this is how we find the different time response of first order system using the different inputs. ठीक है, इम्पल्स इनपुट, स्टेप इनपुट, पैराबोलिक इनपुट, रैंप इनपुट. आप ये ध्यान रखें कि जैसे जैसे इम्पल्स को इंटीग्रेट करते रहेंगे, स्टेप मिलेगा, देन रैंप मिलेगा, देन पैराबोलिक, और उल्टा वाइस वर्सा. अगर आप पैराबोलिक को डिफरेंशिएट करेंगे तो स्टेप मिलेगा, और सॉरी रैंप सिग्नल मिलेगा. रैंप को डिफरेंशिएट करेंगे तो स्टेप मिलेगा. स्टेप को डिफरेंशिएट कर दोगे तो इम्पल्स रिस्पॉन्स मिलेगा. तो इफ यू आर हैविंग CT for impulse response, then you can find the CT for